Hello guys, welcome to Educational Suppliers. Our today's topic is mercy petition and other remedies for death convicts. So let's start with introduction. Death penalty is given in the rarest of the rare cases of criminality as held in Bachchan Singh vs. State of Punjab. The reason for giving death penalty should be such a heinous crime or repetitive offense. However, Article 21 gives the right to life and liberty to every person in India, under which the death penalty is not appreciated. इसका मतलब है कि जो डेथ पेनल्टी इंडिया में दी जाएगी वो बहुत ही रेयर केस यानी कि एक्सेप्शनल केसेस में ही दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। और इसका रीजन जो भी डेथ पेनल्टी देने का रीजन है वो एक हीनियस क्राइम या फिर जो ऐसे ऑफेंसेस है जो बार बार लोग करते हैं, यानी कि एक पर्सन जो कई बार मर्डर कर चुका है, ऐसे लोगों को ही डेथ पेनल्टी दी जाएगी। हालांकि जो आर्टिकल 21 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो क्लियरली कहता है कि आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, जिसका मतलब है कि हमें राइट है अपनी जीवन जीने का, वो भी डिग्निटी के साथ। तो इसकी वजह से आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो डेथ पेनल्टी है वो अप्रिशिएटेड नहीं है। However, Indian Constitution gives certain ways by which death penalty can be substituted to life imprisonment or maybe less in some cases, because we can't give back a life once it is taken, and for one it should be a very cautious approach that even the slightest possibility of taking an innocent person's life would not be appreciated. इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ऐसे वेज दिए हैं, ऐसे रास्ते दिए हैं जिसमें डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट कर देते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। क्योंकि जब एक लाइफ होती है हम ले लेते हैं या किसी को डेथ पेनल्टी दे देते हैं, उसके बाद हम उसका कुछ नहीं कर सकते, और गिल्टी होने से अच्छा है कि हम एक इनोसेंट पर्सन की लाइफ को बहुत ही कॉशियसली यानी कि बहुत ही सतर्क तरीके से यूज करें। Remedies for death convicts are mercy petition, curative petition, commuting death sentence in case of delay in executing. Now first is mercy petition. Article 72 of the Constitution states that once a convict is awarded death sentence by Supreme Court, anybody including a foreign national can send a mercy petition with respect to the convict to the President's office or the Ministry of Home Affairs. The convict may also himself file the petition. Mercy petition जो है उसका प्रोविजन है आर्टिकल 72 भारतीय संविधान का। इसके अंदर ये कहा गया है कि एक बार अगर डेथ सेंटेंस दे दिया जाए तो कोई भी, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन का इंसान हो, वो जिसे भी डेथ सेंटेंस दी गए हैं उसकी बिहाफ में मर्सी पिटिशन फाइल कर सकता है। किसे? प्रेसिडेंट्स के ऑफिस को या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये पिटिशन फाइल की जा सकती है। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, उसे कम कर सकता है, या डेथ कन्विक्ट जो है उनके पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 14 साल या किसी भी साल की मात्रा में घटा सकता है। ऐसा ही सेम पावर आर्टिकल 161 में गवर्नर को दिया गया है। आर्टिकल 161 of the same constitution has the same power to governor of the state, the power to grant pardon, reprise or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against law relating to the matters to which execution power of state extends. In the landmark judgment of Shatrugn Singh Chauhan versus Union of India, the court held that right to file petition under Article 72 and 161 of the Constitution, it is the right also that the judiciary, however, cannot interfere with this right. It is available to President or Governor the power to grant pardons.
In this case, the death sentence given by the Supreme Court was commuted to life imprisonment in the context of Article 21. तो ये जो शत्रुघ्न सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसके अंदर कोर्ट ये कहती है कि ये जो पावर दिया गया है आर्टिकल 72 और 161 में टू प्रेसिडेंट और गवर्नर, इट इज द पावर जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती। और इस केस में जो भी फैक्ट्स थे उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी, जिसको कम्यूट करके आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। सेकेंड इज क्यूरेटिव पिटिशन। When the High Court confirms the death penalty and it is also upheld by the Supreme Court, a convict can file a review petition under Article 137 of the Constitution, and if the review petition is dismissed, a curative petition can be filed for reconsideration of the judgment in order to prevent abuse of power and to cure gross miscarriage of justice. जब हाई कोर्ट डेथ कन्विक्शन दे देता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे अपहेल्ड करती है, तो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 137। लेकिन जब रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर देते हैं तब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हैं, ताकि कोई पावर का मिसयूज करके डेथ पेनल्टी ना दे दे, क्योंकि वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस माना जाएगा। सच पिटिशंस नीड टू बी फाइल्ड within 30 days of date of judgment or order. In order to accept such petition, it must be established that genuine violation of the principle of natural justice has to be there. इसका मतलब ये है कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल करनी चाहिए, जब ऑर्डर आए उसकी 30 दिनों के अंदर अंदर। और उसके फाइल करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये एस्टैब्लिश कर पाए कि जो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो ठीक से कंप्लाई नहीं किए गए हैं केस में। Recently, Supreme Court in Nirbhaya case rejected the curative petition as there was no violation of the principles of natural justice. Next is option of commuting death sentence in case of delay in execution. In case of unexplained inordinate delay in execution of death prisoner, the convict can appeal to apex court. The court, by virtue of its power under Article 32 of the Constitution, commute death sentence into imprisonment of life. इसमें यह बताया गया है कि जब कोई अनएक्सप्लेन्ड या अनरीजनेबल डिले है एग्जीक्यूशन में, यानी कि फांसी देने में, तो उस समय जो प्रिजनर होता है जिसको फांसी दी जाने वाली थी या जिसके लिए फांसी का ऑर्डर दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 रिट पिटिशन डाल सकता है कि उसका जो डेथ सेंटेंस है उसको अनरीजनेबल डिले की वजह से इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए और फांसी का ऑर्डर रद्द किया जाए। Apex Court in Mahendranath Das versus Union of India held that inordinate delay of 12 years was valid ground for commutation of death penalty. महेंद्रनाथ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब अनरीजनेबल डिले हो जाता है 12 साल से ज़्यादा या 12 साल का, तो वो एक वैलिड ग्राउंड है कि जिसके ऊपर डेथ पेनल्टी को कम्यूट यानी कि कम कर देना चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। However, in Devendra Pal Singh versus State of and City of Delhi, Apex Court overruled the judgment, saying that delay in declining cannot be ground of commutation of death penalty. हालांकि देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्रनाथ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को ओवररूल करते हुए ये कहा है कि डिले हो जाना ये एक ग्राउंड नहीं है जिसके अंदर हम डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर सकते हैं। In the landmark judgment of Shatrugni Chauhan versus Union of India, addressing the issue of whether delay in decision of mercy plea was a ground for commuting death sentence of life imprisonment, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि क्या मर्सी प्ली यानी कि जब प्रेसिडेंट के आगे हम प्ली करते हैं मर्सी पिटीशन अंडर आर्टिकल 72 और गवर्नर के सामने जो हम प्ली करते हैं अंडर आर्टिकल 161, वो मर्सी पिटीशन की ग्रांट में या मर्सी पिटीशन के डिस्पोजल में
डिले हो जाता है, क्या ये एक रिलेवेंट ग्राउंड है कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट? Justice P. Sathashivam said there is an option available for grant of judicial clemency on the ground of inordinate delay after a petition of prisoner is rejected. जस्टिस पी सदाशिवम, जो शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के ऑथर रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि जब इनऑर्डिनेट या अनरीजनेबल डिले हो जाता है मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट करने में, तो ये एक ग्राउंड बन जाता है जिसके ऊपर जुडिशियल क्लेमेंसी चाहे तो इनऑर्डिनेट डिले की वजह से डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है। मूविंग ऑन टू कंक्लूजन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सर्टेन रेमेडीज फॉर द कन्विक्ट्स ऑफ डेथ पेनल्टी in the hands of president or governors so that judiciary's arbitrary decision can be controlled. But there are cases where the convicts are guilty of such heinous crimes that according to the rule of natural justice, no mercy should be provided. Constitution of India प्रेसिडेंट और गवर्नर के हाथ में ऐसे पावर्स देता है जिसमें वो डेथ पेनल्टी को कम पेनल्टी में कन्वर्ट कर सकता है। और ये पावर देने का एक रीज़न ये है कि जुडिशरी यानी कि जजेस किसी भी चीज़ में आर्बिट्ररी डिसीजन ना ले सके, और अगर वो आर्बिट्ररी डिसीजन ले रहे हैं तो उसे प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा कंट्रोल किया जाए। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कन्विक्ट जो होते हैं वो ऐसे हीनियस क्राइम यानी कि ऐसे भयानक क्राइम कर चुके रहते हैं जिसके लिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस उनको कोई भी मर्सी प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एजुकेशनल सप्लायर्स। We will come back with more interesting videos. Till then, stay tuned with